Welcome to this 12th Sunday after Pentecost. Pray the Lord will bless you this very morning. प्रभु जी आप सबको आशीष दे और इस इबादत सबको प्रभु जी सारी प्रार्थनाओं से सबके हाँ और आमीन में पूरा करे. So we pray the Lord will bless you and strengthen your faith. Today the theme for our worship is the right attitude to possession. हमारी संपत्ति के प्रति जो एक स्वभाव, एक सही किस्म का स्वभाव होना चाहिए, उसके विषय में आज हमारी इबादत का विषय है. And it talks about the Lord delivered the souls of his servant, and they that put their trust in him shall not be desolate. Of course, परमेश्वर जो है हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, छुटकारा देता है, और जो अपना विश्वास परमेश्वर में रखते हैं वो कभी शर्मिंदित नहीं होंगे. They will never be ashamed of what God has done in their life. Let us rise up and praise God by singing hymn number 107, Jesus Call Us Over the Tumult. Service, and there is a prayer called collect over here, and we'll say it together. Grant us, O Lord, not to be anxious about earthly things, but to love things heavenly. We are passing away, so to use them that they may attain to those that endure. To Jesus Christ, your Son, our Lord, lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. आमीन. हे प्रभु हमें वर दीजिए कि हम संसारिक वस्तुओं की चिंता ना करें, वरन स्वर्गिक वस्तुओं पर प्रेम करें. जब हम अन्यथा वस्तुओं पर बीच के जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको ऐसा उपयोग करें कि नित्य वस्तुओं को प्राप्त करें. आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं. आमीन. Shall you turn to our Bible to Psalm 49, page 472. We'll do responsive first and first to third verse, and then 13 to 15. भजन 39, 49, पहली से तीसरी आयत और फिर 13 से 15वीं आयत.
Hear this, all people, give ear, all inhabitants of the world. My mouth shall speak wisdom, the meditation of my heart shall be understanding. Verse number 13. Like sheep, they are appointed for the soul. Death shall be their shepherd, and their pride shall rule over them in the morning. And their form shall be consumed in Sheol, with no place to dwell. Shall we say verse 20 together? Man in his pomp, yet without understanding, is like the beasts that perish. Seated, कलीसिया बैठ जाए, परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा. We have a combined service, first in English, then in Hindi. The Bible reading will take place. The first reading today is from the Old Testament, Genesis chapter 13, verses 2 to 12. In the Bibles in your pew, it can be found on page 9. Genesis chapter 13, verses 2 to 12. Now Abram was very rich in livestock, in silver and in gold, and he journeyed on from the Negeb as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place where he had made an altar for the first time. And there Abram called upon the name of the Lord. And Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents, so that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was strife between the herdsmen of Abram's stock and the herdsmen of Lot's livestock. And at that time, the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. Then Abram said to Lot, "Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take the right hand, then I will go to the left." And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Abraham settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. This is the word of the Lord. Thanks be to God. पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति से आज का पहला अध्ययन 13वां बाब और उसकी 2 से 12 आयत तक। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी,
गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक स्वर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आज की सुबह हम सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन। The second reading is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 6, verses 1 to 9 and verse 11. 1 Corinthians, chapter 6, verse 1, found on page 954 in the Bible. When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more than matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to you to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. Verse 11, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. This is the word of the Lord. आज का दूसरा पाठ लिया गया है नए नियम से पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 6, उसकी पहली आयत से 9वीं आयत और 11वीं आयत, जो कि पेज नंबर है 232, और इसके हेडिंग में है मसीहों में मुकदमेबाजी। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं?
क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वे भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्तीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। आइए हम सब लोग हिंदी भजन गाएंगे। भजन नंबर 5, मैं ना बीना। Chapter 12, beginning from verse 13. Let's say together, Glory to you, Christ Jesus. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or arbitrator over you? And he said to them, Take care
Be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in abundance of his possessions. And he told them a parable, saying, the land of a rich man produced plentiful. And he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build large ones, and there I will store all my grain and my goods. I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, those whose will they be? So the one who lays up treasure for himself is not rich towards God. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. We shall remain standing and sing hymn number 129, O Thou in whose presence. O thou in whose
Let us bow our heads in prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you for all the blessings in our life. Thank you, Father, for safely bringing us to your holy sanctuary. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो इस वक्त हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर बीते हफ्ते के लिए आपने हम में से हर एक को संभाला। आपने हमारे आने जाने में हमारी मदद सहायता की, हर दुर्घटनाओं से परेशानियों से आपने हमें बचाया। जब जब प्रभु जी हमने प्रार्थनाओं में आपको पुकारा पिता, आप हमारी मदद के लिए तुरंत चले आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपने हमारी सारी ज़रूरतों को बीते हफ्ते में पूरा किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे घर परिवारों में बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, आपने उन सबों को संभाला पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद रूपी बलिदानों को प्रभु जी इस वक्त आपके भवन में लाए हैं चढ़ाने के लिए और चाहते हैं प्रभु जी कि आप कबूल करें पिता परमेश्वर। आपके वचन पर जब मनन करते हैं आप हम सबके साथ होना, अपनी आत्मा का दान हम में से प्रत्येक को देना प्रभु जी, ताकि आपके वचन के प्रकाश में पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को जांचने वाले हो सकें और जो कमियां पाई जाती हैं, घटिया पाई जाती हैं, उनको दूर करने वाले हो सके। आप हम सबके साथ होना। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Today is the 12th Sunday after Pentecost and our theme is the right attitude to possessions. हमारा जो दृष्टिकोण है वो धन संपत्ति के प्रति जो हमारे पास है, चाहे वो पैसा है चाहे कुछ भी है, वो कैसा है। और हम लोग सब सिकंदर के बारे में जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड वी हैव हर्ड इट एंड वी हैव हर्ड द स्टोरी मैनी टाइम्स। जो आज हमारा विषय है उससे जो सिकंदर के या अलेक्जेंडर के जीवन में जो कहानी थी वो बिल्कुल सही बैठती है। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो व्हेन अलेक्जेंडर वाज ऑन हिज डेथ बेड ही कॉल्ड ऑल हिज जनरल्स, और उसने बोला कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरी 3 इच्छाएं हैं, आई हैव 3 विशेस, प्लीज़ कैरी देम आउट विदाउट फेलियर। और उसने बोला सबसे पहली इच्छा, द किंग सेड ही न्यू ही वुड डाई नाउ। उसने कहा, द किंग सेड माई फिजिशियंस अलोन मस्ट कैरी माई कॉफिन। मेरा जो ताबूत है, मेरा जो कॉफिन है, वो मेरे जो डॉक्टर हैं सिर्फ वही लेके चलेंगे। दूसरी इच्छा थी, I desire that when my coffin is being carried to the graveyard, the path leading to the graveyard be filled with the wealth that I have collected. जब मेरे जनाजा निकलेगा तो चारों तरफ जो मैंने इख्तियार किया है या मैंने हासिल किया है वो मैं सब डिस्प्ले में लगाइए। और तीसरी इच्छा जो हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं वो ये थी कि मेरे दोनों हाथ जो है वो मेरे कॉफिन से बाहर लटकाए जाएं। तो जो उसके जनरल थे उनको बड़ा ताजुब हुआ, उन्होंने पूछा ये आपकी क्या अजीब सी इच्छाएं हैं, आप हमें कृपया बताएं, प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू वांट टू शो। तो अलेक्जेंडर ने बोलना शुरू करा, पहली इच्छा, मैं 3 चीज़ें लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो ये है, उसने कहा सबसे पहली बात, आई वॉन्ट माई फिजिशियंस टू कैरी माई कॉफिन बिकॉज पीपल शुड रियलाइज दैट नो डॉक्टर ऑन दिस अर्थ कैन रियली क्योर एनी बॉडी। कि इस जहान में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जब इंसान को इस दुनिया से जाना है तो उसको बचा पाए। Describing his second wish, the king said, I spent all my life earning riches but cannot take anything with me. लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी भर धन कमाने में लगाया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। Let people know that wealth is nothing but dust. जो धन दौलत है, संपत्ति है, वो कुछ नहीं, सिर्फ धूल है। एंड द लास्ट विश वॉज दैट लेट पीपल नो दैट आई केम एम्प्टी हैंडेड इन टू द वर्ल्ड एंड आई एम गोइंग एंड आई विल गो एम्प्टी हैंडेड। सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस पृथ्वी से जा रहा है। मैंने और आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी और हम सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं इन चीज़ों की, ये धन संपत्ति या और भी जो भी चीज़ें हमारी पोजेशंस जिनको हम कहते हैं, दे आर नॉट आर्स। वॉट वी हैव read from the parable, Jesus is not condemning wealth and not even the desire for more wealth.
The key verses which makes Jesus' purpose clear are verse 15 and 21, what we have learned, what we have read from Luke chapter 12. जो लूका 12 में हमने पढ़ा है, उसमें जो 15वां पद है और 21वां पद है, उसमें हम साफ पाते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। 15वां पद जो है 15th वर्स, इट सेज वॉच आउट, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड, लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन एन अबंडेंस ऑफ पोजेशन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वॉच आउट, यानी कि सावधान रहो। सावधान किस चीज़ से रहो? कि हर तरह का जो लालच है उससे सावधान रहो, अपने आप को सावधान रखो। सिर्फ पैसे का ही लालच नहीं, बहुत सी चीज़ों का मैं और आप जो है लालच करते हैं। वी आर ग्रीडी अबाउट मैनी थिंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट मैनी अदर थिंग। लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन एन अबंडेंस ऑफ पोजेशन। जिंदगी या मेरी जो लाइफ है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कितना ज़्यादा है, कितना कुछ है। And the 21st verse says, and Jesus finishes with these words, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God. और ऐसा ही उन लोगों के साथ होगा जो लोग अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो धनी नहीं होंगे। ग्रीड या लालच, it is nothing more than a desire to have more than we actually have. गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं कर पाते हैं। एंड दिस हैपन्स विथ ऑल ऑफ अस, वी ऑल हैव इनफ। हमें परमेश्वर ने हमारे हिसाब से जो वो चाहता है, जैसे एक अच्छा पिता देता है, हम सबको सब कुछ दिया है, पर हम फिर भी गिनती उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो हमें हासिल नहीं होती। और वहीं से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पॉइंट द ग्रीड कम्स इन आवर लाइफ। वो लालच हमारे अंदर शुरू हो जाता है। बिकॉज ग्रीड डज नॉट हैव एनी प्लेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। ग्रीड जस्ट मेक्स अस पुअर। आप जानते हैं जितना हम लालच करते हैं चीज़ों का, उतने हम और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दैट, रनिंग आफ्टर थिंग्स, running after materialistic things. So Jesus tells us a story. This story, this parable, what he has told, we have heard it many times. And we know it. We know there was a rich farmer, he had produced a bumper crop and he could tell that the harvest was going to be great. उसको पता था कि जो मेरी फसल होगी या जो मेरी पैदावार होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और उस समय के लोग ये सोचते थे कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन पे परमेश्वर की विशेष आशीष है, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन ऐसा नहीं था। यदि हम इस पैरेबल को पढ़ते हैं, दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह इस जो ये इंसान था इसको मूर्ख कहते हैं। Jesus calls that rich man a fool. Jesus proves this point by having the rich farmer talk to himself. वो इतना अपने आप में कमाने में और अपने आप में धन के पीछे भागने में इतना व्यस्त है, वो so engrossed in all this that he started talking to himself. और हम लोग सब जानते हैं, जो लोग अपने आप से ज़्यादा बात करने लगते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? We all know it. He started talking to himself and he said, I know, I will tear down my barns and build bigger ones. मैं इन खत्तों को और इनको गिरा दूंगा और बड़े बनाऊंगा और उसमें सब कुछ डाल के कहूँगा, ए मेरी जान खा पी और मज़े में रहे, क्योंकि कल किसने देखा है। एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं, वो इंसान अपने आप से बात कर रहा है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर स्वयं प्रकट होता है। अगर आप इंजीलों को पढ़ेंगे, if you read the Gospels, in most of the, I think in all the parables, most of the parables, yeah, all the parables, God never shows up. But here God becomes a character. ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें परमेश्वर स्वयं आता है. He comes and he talks. This is the only parable in the entire New Testament where God shows up and as an actor in the story. परमेश्वर खुद आ रहा है और परमेश्वर उससे कहता है, यदि आज ही की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो तूने ये इकट्ठा किया है ये किसका होगा। और जिस व्यक्ति को हम सोचते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर की नज़र में वो जो है मूर्ख कहलाता है. दिस इज द रियल पॉवर्टी दैट कम्स फ्रॉम ग्रीड. लालच से यही गरीबी आती है. द मोर वी वॉन्ट द लेस सेटिस्फाइड वी आर until we have that, and enough is never enough. ये मुझे और आपको सीखना है. काफ़ी कभी काफ़ी नहीं होता है.
जितना हम चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना मैं और आप व्याकुल और बेचैन रहते हैं। ग्रीड इज द टेपवर्म इन आवर सोल्स, जो कीड़ा हमारे पेट में होता है, ये जो लालच होता है ये हमारी आत्मा में होता है, कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग एंड नेवर बीइंग सेटिस्फाइड। और जब मेरे और आपका जीवन खत्म होता है और जब हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं तो जो कुछ हमने इकट्ठा किया होता है वो हम किसके लिए छोड़ जाते हैं हम खुद भी नहीं जानते। इसलिए समुपदेशक के लेखक ने, सुलेमान राजा ने यही लिखा है, किंग सोलोमन हैज रिटन इट, दैट पीपल अक्यूमुलेट सो मच बट दे डोंट नो आफ्टर देयर डेथ हु विल गेट होल्ड ऑफ दैट। और हम लोग दुनिया में सब होते हुए देखते हैं। एंड यू नो व्हाट, रिसर्च हैज शोज दैट पीपल with this greed of possessions and money are very self-centered. They are very selfish. They want to live in isolation. आपने देखा होगा ये लोग ज़्यादा लोगों से बोलते नहीं हैं. This is what research has shown. They become isolated. They are not anti-social. They become isolated. क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहाँ से मिल जाए और कैसे मिल जाए. And please mind it, we are not talking about wealthy people. Just people who think about money a lot, about possessions a lot. Some really wealthy people don't think. But some very middle class and poor people think about all these things every time, everywhere. You know, it is the thinking about money and positions that God is criticizing, or He is against it. परमेश्वर चाहता है मैं और आप सब संपन्न रहें, आशीषित रहें, हमें किसी बात की घटी ना हो। लेकिन यदि मैं और आप पूरे समय इन्हीं चीज़ों के बारे में, दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, तो वो मेरे और आत्मा और शरीर दोनों के लिए हानिकारक है। इट इज इंजुरियस टू बोथ आवर बॉडी एंड सोल। एंड यू नो व्हाट, in another research it says that people who do at least 3 generous things a week are more likely to extend their lifespan and required half as much as medication as they grow older. जो लोग उदारता से दान देते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अपने भंडारों को दूसरों की मदद के लिए खोल के रखते हैं, उनकी जिंदगी बढ़ती है और उनको बुढ़ापे में कम दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। Generosity makes us healthier while worrying about possession isolates us. You know, no wonder Jesus calls this rich farmer a fool. परमेश्वर इस व्यक्ति को मूर्ख कहता है। अपने आप, अपने धन पे केंद्रित होने के कारण उसने अपने आप को बिल्कुल इतना अकेला कर लिया है कि वो अपने आप से बात करने लगा है। वो अपने आप से बात कर रहा है। He is thinking about himself. I, me and mine. The Trinity. I, me and mine. और आप जानते हैं, the words I and my are used 11 times in this passage. यदि आप गिनते हैं 11 बार मैं, मेरा. You know what? Conversations reveal what people are like. जैसे हम बात करते हैं पता लग जाता है हम किस तरह के व्यक्ति हैं. The man has isolated himself from others, just the opposite of what the kingdom of God is about. The kingdom of God is about community living. It is working together for the glory of God, staying connected with God and with our brothers and sisters in Christ. This is what is richness in God. परमेश्वर में धन जब मुझे बटोरना है तो मुझे ऐसे अपना जीवन जीना है। उन चीजों को मेरे को अहमियत देनी है जो परमेश्वर चाहता है मैं अहमियत दूं। It means what? It means the first thing, it means to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. अपने परमेश्वर से अपने तन, मन, धन हर तरह से जो है प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पाप अंगीकार के पहले, before confession of sin, we say this. This is what God wants. It means loving mercy, acting justly and walking humbly with God. दया के साथ रहना, न्याय के काम करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, to lead a rich spiritual life, reading the gospel of reading the God's word, praying and forming deep friendship with other believers who also follow Jesus Christ. लोगों के साथ संगति रखना, जैसे मैं और आप आज यहाँ बैठे हैं. This is what is called accumulating richness in the kingdom of God. मुझे और आपको इस चीज से
एक चीज जो सीखने मिलती है वो ये है, इन दिस वर्ल्ड वी वांट मोर एंड मोर ऑल द टाइम, थिंकिंग इट्स आवर्स, वी डोंट ओन एनीथिंग। मेरे और आपका यहां कुछ नहीं है, वी आर ऑल मैनेजर्स हियर। हम प्रबंधक हैं यहां पर, मैनेजर्स बन के हम यहां पर आए हैं। अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं तो वो कंपनी आपकी नहीं हो जाती है, आप उस कंपनी के मालिक नहीं हैं, आप उस कंपनी की देखभाल कर रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ द वर्क ऑफ दैट कंपनी। To understand this manager relationship with God, we need to first think, एक दृढ़ कथन या assertion जिसको कहते हैं, I need to talk to myself and say everything that I have belongs to God। जो मेरे पास है, मेरे तन पे कपड़े कुछ भी है वो परमेश्वर का है। All that we are, all that we have and all that there is, सब कुछ परमेश्वर का है। What the world says is opposite। दुनिया कुछ और बोलती है, अजी जो मैंने कमाया है वो मेरा है, ये जी मेरी मेहनत है, मैंने दिन रात एक करके ये सब कुछ बनाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये गाड़ी मैंने खरीदी है, ये नौकरी मैंने बहुत इंटरव्यू दे के पास करी है, ऐसा वैसा। वी हियर ऑल दीज थिंग्स, बट वी द पीपल ऑफ गॉड हैव टू ऑलवेज थिंक ऑपोजिट। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी हैव एक्यूमुलेटेड, जो भी मेरे और आपके पास है वो सब परमेश्वर का है। एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट विथ वॉट बिलोंग्स टू मी। इट इज ओनली अप टू मी। जी मेरे पास जो है वो सब मेरा है और मैं जो चाहूं जिसके साथ जैसा करूं, ऐसा नहीं होता। अगर हम बाइबल उठाते हैं, भजन संहिता 24:1 कहता है, पृथ्वी जो है वो यहोवा की है, उसकी भरपूरी जो है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो परमेश्वर का है। अगर हगाई की पुस्तक में आते हैं, उसको 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इस पृथ्वी पर जितना सोना और चांदी है वो सब परमेश्वर का है, ऐसा परमेश्वर कहता है। ये भजन संहिता 50:10 में आते हैं, उसमें लिखा है, जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं वो सब परमेश्वर के हैं। पौलुस के पास जब आते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज अ सैंक्चुअरी ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, whom you have from God। बाइबल इस बात को साफ साफ कहती है कि मेरा और आपका कुछ नहीं है। और मैंने इस बात को आपसे पहले भी शेयर करा है कई बार कि मुझे और आपको कई बार अपने बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे पास फ़ोन हैं, उनको कई बार अपने जीवन में ऑन करके जब हम फ्री होते हैं और जब हम दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं, कई बार ऑन करके अपने घर की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए हमारे घर में कहाँ क्या क्या है, हमारे डाइनिंग रूम में क्या, हमारे बेडरूम में क्या, हमारे किचन में क्या है, हमारे बालकनी में क्या है, हमारे गैरेज में कितनी कार खड़ी हैं, हमारे अंदर जो लॉकर्स है उसमें क्या क्या रखा हुआ है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं जो निराकार जिसको कहते हैं बैंक अकाउंट्स है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। अरे एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए, वस्तु सूची जिसको हिंदी में कहते हैं, बनाना चाहिए। टेक स्टॉक, वी शुड टेक स्टॉक कि क्या क्या हमने और आपने पा लिया है। और जब अंत में स्टॉक ले ले तो अपने आप परमेश्वर का धन्यवाद करके बोले, परमेश्वर जो कुछ तूने दिया है वो मेरा नहीं, वो सब तेरा है, तेरी ओर से मिला है परमेश्वर, मैंने कुछ हासिल नहीं करा है, सब तेरी ओर से ही मिला है। इट्स गॉड्स, नॉट माइन। ही इज द ओनर, आई एम द मैनेजर। एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे कम्स फ्रॉम गॉड। David says in Psalm 89 verse 11, the world and everything in it belongs to God। जितना कुछ, देखिए इजराइल का राजा लोग तो बड़े घमंडी होते हैं, बड़ा एटीट्यूड होता है उनमें, बट ही हैड दैट राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स पोजेशन, मनी। उसका दृष्टिकोण धन और संपत्ति के लिए कितना अच्छा था। वो लिखता है कि जो कुछ पृथ्वी में है, वो ये नहीं लिखता मेरा है, मैंने हासिल करा, वो लिखता है द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट बिलोंग्स टू गॉड। हम अपने आप को ऐसे जब कहते हैं ना तो हम हलीम करते हैं। परमेश्वर यही चाहता है मुझसे और आपसे कि हम अपने आप को हलीम रखें, हम्बल रखें परमेश्वर के आगे। यू नो व्हाट, इफ आई बिलीव दैट आई एम द ओनर, देन आई बिकम लाइक दैट रिच फूल, दैट then I will be constantly in conflict with God over what I do with things I have। आप जानते हैं जब हम ऐसा होता है तो क्या होता है, हम निरंतर परमेश्वर के साथ एक लड़ाई में रहते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को और अपनी चीजों को अपनी इच्छा से चलाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है।
और शैतान वहां पे काम करना जो है शुरू कर देता है. बट व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड इज द ओनर एंड आई एम द मैनेजर, द कॉन्फ्लिक्ट डिसअपियर्स एंड फ्रीडम ओवरटेक्स माय लाइफ. फिर हम आज़ादी से जीते हैं. जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, उसको सारा आदर मान देते हैं, उसको सारी महिमा देते हैं हर चीज के लिए, तो तब हम आज़ादी का जीवन जीते हैं. परमेश्वर बढ़ाता है मुझे और आपको. हम सबको यहाँ परमेश्वर ने आशीषित किया है. यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा जो ये कह सकता है जी मैं जैसा कल था वैसा मैं आज हूँ, जैसा मैं 10 साल पहले था वैसा मैं आज हूँ. आज हम सबको परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया है, चाहे वो घर के द्वारा बढ़ाया है, चाहे गाड़ियों के द्वारा बढ़ाया. मुझे आज भी याद है हम लोग बस से आते थे. We used to run after DTC buses to reach here. Today we have that blessing to घर से निकले जी, कार में बैठे और यहाँ आ गए. This all belongs to God. हम में से कोई नहीं कह सकता कि आज जी मैं वैसा ही हूं जैसे 10 साल पहले था. परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है. परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम उसको महिमा दें. और उसके लिए दूसरा जो है वो ये है, मेरा हृदय जो है धन्यवाद से भरे रहना चाहिए. इसका सबसे अच्छा मिसाल मुझे मिलता है पहला इतिहास में, जब दाऊद राजा मंदिर बनाने के लिए जाता है. और जब मंदिर बनाने की बात आती है तो दाऊद राजा जो है पृथ्वी का बहुत बलशाली और शक्तिशाली व्यक्ति था. अगर हम उस 29 को पढ़ते हैं, पहला राजा 29 में, वो कहता है वहाँ पे कि वहाँ पे पूरे मंदिर की डिटेल लिखी हुई है. और देखिए राजा क्या करता है. राजा सबसे पहले अपना धन संपत्ति जो है वो परमेश्वर को बनाने के लिए अर्पण करता है. और जब वो एक उदाहरण जो है दिखा देता है, सेट्स अ गुड एग्जाम्पल, ही चैलेंजेस द लीडर्स टू फॉलो एंड द लीडर्स फॉलो, इफ यू रीड इन वर्स 6. और जब ये सब पूरी प्रजा देख रही होती है तो पवित्र आत्मा जो है कार्य को करता है और प्रजा के लोग भी अपनी हैसियत के हिसाब से मंदिर में दान देते हैं कि मंदिर को बनाया जाए. They freely and wholeheartedly, these words are used in the Bible, they give freely and wholeheartedly because they had one thing in mind, that whatever we have is from God. और जो हम दे रहे हैं वो ही हम परमेश्वर को वापस कर रहे हैं. आप जानते हैं जब हम कम्युनियन में जाते हैं, जो हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं, तो वहाँ यही तो लिखा है. दाऊद की ये प्रार्थना अगर आप पाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 14वीं आयत से, मैं क्या हूँ. See, the king humbling himself. मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले. तुझसे तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है. दिस इज वॉट वी से व्हेन वी स्टार्ट द कम्युनियन, जो हम आज भी करेंगे, कि जो कुछ हमको तुझसे प्राप्त होता है हम तुझे वो वापस करते हैं. This is the attitude. This is the attitude we should have towards our possessions and money that we have. और आप जानते हैं जब ऐसा करते हैं पवित्र आत्मा कार्य करता है. आपने कितनी बार देखा होगा, पास्टर comes here and announces, we need an organ, we need this thing, we need whatever. और आप अगले हफ्ते पास्टर को देखेंगे आके अनाउंस करते हैं, जी एक फैमिली ने दे दिया, जी एक फैमिली ने कंट्रीब्यूट कर दिया. कहां से होता है? These are those people who think that what we have belongs to God and let us do for the work of God. और परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीषित करता है. David says the people gave generously because they understood everything had come from God. In a sense, they were only giving back to God what He had given them in the first place. जो जी हम दे रहे हैं वो परमेश्वर को ही तो दे रहे हैं. और हम सारा तो देते नहीं, हम तो कुछ ही इच्छा देते, इसे हिस्सा देते हैं. लेकिन परमेश्वर उससे भी मुझे और आपसे प्रसन्न रहता है और इसलिए उन्होंने आनंद से वहां पर दिया. You know, one of the attributes of the right attitude towards possession is the generous giving. देना आना चाहिए मुझे. देना जो है लेने से उत्तम है, ऐसा कहा जाता है. देना जो है वो लेने से उत्तम है. और ये तभी संभव होता है when we understand this basic truth that everything belongs to God. हर चीज मुझे और आपको उपहार के तौर पर मिली है, ध्यान रखिएगा. नथिंग इज अर्नड. कुछ नहीं कमाया मैंने और आपने आज की डेट में. एवरी बिट वी हैव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. एक एक कण जो मेरे और आपके जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है. मेरी जिंदगी जो है एक उपहार है. मेरी, इफ आई एम हेल्दी इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. इफ यू आर एबल टू वॉक हियर टिल द चर्च तक आप चल के आए, आराम से ड्राइव करके जैसे भी आए, उपहार है परमेश्वर का. मुझे और आपको जो दिया है सेहत, मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरी इंटेलिजेंस,
मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पर्सनैलिटी, बच्चे, परिवार, spouses, relations, everything, friendship and accomplishments that we have, our designations that we have, these are all possessions that we have, they all belong to God. We own nothing. ध्यान रखिएगा, हम कितने भी बलशाली हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, हमारी बॉडी को 4 लोग ही देके जाएंगे ग्रेवयार्ड तक, हम खुद नहीं ले आ पाएंगे. No matter how many cars we have, how many vehicles we have, how much rich we are, हम में से हर कोई अपने बिस्तर तक पैदल चल के जाता है सोने के लिए. We need to be contented. We need to be humble. जिंदगी में छोटी छोटी बातों को मुझे और आपको सोचना और उसके बाद उसके लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है. I went to the hospital Friday night. कहते हैं जिंदगी अगर देखनी है तो अस्पताल जाइए और देखिए. People grasping for breath, people coughing, कोई पेट दर्द, कोई ये दर्द, कोई दर्द. और जब आप इन चीज़ों को देखते हैं और जब आप अपने आप को देखते हो, लगता है खुदा बाप तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है प्रभु जी कि मैं सही सलामत हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग इन द हॉस्पिटल्स फॉर मनी, फॉर पेइंग बिल्स, फॉर मेडिसिन, एवरीथिंग. हम लोग हॉस्पिटल कैंपस में रहे, मैंने देखा है. किसी चीज़ का कोई घमंड करने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है. जिंदगी देखनी है, अस्पताल में जाके देखिए. जिंदगी देखनी है, कोर्ट में जाके देखिए. हाउ पीपल स्ट्रगल. एंड दैट इज दोज प्लेसेस वी रियलाइज हाउ फ्रेजाइल वी आर, हाउ फ्रेजाइल लाइफ इज, एंड हाउ मच थैंकफुल वी शुड टू गॉड. अब मुझे और आपको कितना शुक्र करना चाहिए परमेश्वर का कि आज मैं और आप जिंदा है, जीवित हैं, सही सलामत है, सब कुछ है हमारे पास. परमेश्वर मुझे और आपको लोन देता है हर चीज का और कहता है इसका ध्यान रख ले. अगर हम ना अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं और हम किसी चीज को, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसे दबा लेते हैं, आपने देखा होगा, किसी चीज को छोड़ना नहीं मांगते. लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है जी, वो अपने आप जब मुट्ठी खोलना शुरू करता है तो वो हमसे हर चीज वापस लेता है. आई मे फाइट बैक बट ही इज स्ट्रॉन्गर एंड विल ऑलवेज बी, ही विल विन. और जो कुछ उसने मुझे आपको दिया है वो सब कुछ एक ना एक दिन मुझसे वो वापस ले लेता है. सबसे अच्छा तरीका है दें. जो आपके पास है उसको दे. वो चाहे आपके टैलेंट्स है, चाहे आपके रिसोर्सेज है, सोर्सेज है, मनी है, कुछ भी है, गिव इट. You know, great things can be accomplished when all of us together and each one of us individually give generously for the common good. बहुत बड़े बड़े काम होते हैं. इस चर्च ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जब लोगों ने दान दिया आगे बढ़ करके. If we talk about giving, remember, it is not about money. It was never about money. बात ना पैसे की थी कभी और ना पैसे की है. ना वो ये है कि आप अपने चेक पे कितना लिखते हैं, ना आप अपने कैश से, पर्स से कैश कितना निकाल के देते हैं. इट इज एक्चुअली अबाउट आवर हार्ट्स एंड आवर फेथ. मेरे और आपके दिल की और मेरे आपके विश्वास की बात होती है. अबाउट आवर रिलेशनशिप विद क्राइस्ट. मुझे क्या लगता है, परमेश्वर की चीज की जरूरत है? परमेश्वर को मेरे 100 रुपए की जरूरत है? 500 रुपए की जरूरत है? मेरे गोल्ड की जरूरत? नो. It is about our commitment to the work of the church and its mission. परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक अपने हिसाब से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें. And it should always come from inside. कहते हैं काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक खौफ से और एक शौक से. अगर आप खौफ से काम करते हैं कोई फायदा नहीं है. आप बच्चे को मार मार के बिठा के पढ़ाइए, कोई फायदा नहीं है. वही बच्चा अगर अपने शौक से पढ़ता है, ही एक्सेल्स इन लाइफ एंड इट गोज फॉर ईच वन ऑफ अस. अगर हम अपने शौक से परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर वाकई में आशीषित करता है. उसके अपने तरीके हैं. अगर आज मुझे और आपको परमेश्वर को देने में प्रॉब्लम है, उसके कार्य करने में प्रॉब्लम, इट मीन्स दैट आई एम नॉट इन दैट line that everything comes from God.
इट इज बीइंग लोन टू अस, लोन दिया हुआ है मुझे। मैक्सी जर्मन, ही इज कॉल्ड द क्रिश्चियन बिजनेसमैन, वो जब अपने अच्छे समय था उन्होंने खूब दान दिए, खूब चर्चेज बनवाए, सब कुछ करा, और एक दिन क्या हुआ, ही हैड अ फाइनेंशियल सेटबैक, ही लॉस्ट हिज कंपनी, मोस्ट ऑफ हिज पर्सनल फॉर्च्यून। और उनके एक मित्र ने आके उनसे पूछा कि आपको क्या पछतावा नहीं होता, उस समय आप इतना दान दक्षिणा दे रहे थे, आज आपके पास कुछ नहीं बता। एंड ही आंसर्ड, नॉट एट ऑल, आई ओनली लॉस्ट व्हाट आई केप्ट फॉर माई सेल्फ, मैंने सिर्फ वो ही खोया है जो मैं अपने लिए रखा है। इन गॉड्स इकोनॉमी व्हाट वी कीप वी लूज, एंड व्हाट वी गिव टू गॉड इट इज आर्स फॉर एवर। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में जो हम रखते हैं वो हम खो देंगे, लेकिन जो हम परमेश्वर को देते हैं वो सदैव हमारा रहेगा, उससे हमको कोई नहीं छीन सकता। आप जानते हैं कई लोग इस बात से चिढ़ते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, पादरी लोग जब पुलपिट से आके पैसे की बात करते हैं, जी दान दीजिए, अजी ये बनवाना है, यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, ये करिए। कोई गलत बात नहीं है। अगर आप बाइबल उठाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह भी बहुत ऐसी बातें करता था। आप जानते हैं 38 में से 38 पैराबल्स में से 16 जो हैं दे आर कंसर्न विद हाउ टू हैंडल मनी एंड पोजेशंस। नॉट बैड, क्या गलत है इसमें? इन द गॉस्पल्स इट्स अमेजिंग, आउट ऑफ 10 verses, that is 288 in all, every 10th word deals directly with the subject of money or possessions. The Bible offers 500 verses on prayer, less than 500 verses on faith, and more than 2000 verses on money and possessions. This is actually the truth. लूका 12:34 कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी हो। लोग कहते हैं नहीं जी मनवा लगाओ धन आएगा, नहीं, यीशु मसीह कहते हैं जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। वो मुझे और आपको देखना है कहां है मेरा धन और मन। Jesus says in Matthew 6:19-20, do not store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy, and when thieves break and steal, but store up for yourself treasures in heaven which no one can steal or take away from you. अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करिए। लूका 12 में परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, अगर आज ही रात तेरे से तेरा प्राण ले लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा करा है वो किसका होगा? ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। अ पास्टर was invited to the mansion of a very wealthy man. और जो अमीर व्यक्ति था वो पादरी साहब को ले गया, ये देखिए भाई साहब उस तरफ कितने तेल के कुएं हैं, ये किसके हैं? ये मेरे हैं, है ना। फिर उस तरफ दूसरी तरफ दिखाता है, कहता है वो देखो खेत, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। फिर वो पूर्व दिशा में ईस्ट में दिखाता है, कहता है आप देख रहे हैं यहाँ पे जानवर जितने, ये सब मेरे हैं। और दूसरी तरफ फिर इशारा करके कहता है देखिए आप स्ट्रेट देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, वो किसकी है जी? ये मेरी है। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग द पास्टर टू कॉम्प्लीमेंट, भाई क्या बात है। बट द पास्टर हाउएवर प्लेसिंग वन हैंड ऑन हिज मैन शोल्डर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेवन सेड, भाई उस डायरेक्शन में कितना है? हाउ मच हैव यू अर्नड इन दैट डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब हो गया तुम्हारा, व्हाट हैव यू अर्नड इन द अपवर्ड डायरेक्शन? एंड ही सेड आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं पादरी साहब। मैं और आप अपने जीवन में इतना भागते हैं, कई बार इतना इन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, हर चीज के पीछे, कि हम भूल जाते हैं, दूसरों के लिए भूल जाते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भूल जाते हैं, कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य में काम करना है। हम अपने शरीरों के बारे में कभी कभी इतना सोचते हैं कि हम अपनी आत्मा के बारे में भूल जाते हैं कि हमें उसे भी बचाना है। यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जो इस कुएं से पानी पिएगा पृथ्वी के, वो प्यासा होगा, लेकिन जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जीसस इज द वाटर ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन का जल है। इस पृथ्वी का कोई भी जल मुझे और आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, किसी भी रूप में देख लीजिए, चाहे वो धन है, चाहे संपत्ति है, चाहे नौकरी है, चाहे प्रमोशन है, चाहे कोई कार खरीदते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो मुझे और आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। दुनिया में बहुत से लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। दे कीप ऑन लुकिंग फॉर प्लेजर्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड दे इवेंचुअली एंड अप डेड।
बहुत से लोग देखिए सुसाइड रेट कितना बढ़ गया आजकल, आए दिन। हैव यू एवर रेड इन द न्यूज़पेपर अ पुअर मैन कमिटिंग सुसाइड, a person living in a jhuggi committing a suicide? You know what people, BTech committing a suicide, a software engineer committing a suicide in Bangalore, an engineer committing a suicide. Why? मैं कभी कभी अपने घर में बैठ के सोचता हूँ, इतना पढ़ा लिखा भाई ये आदमी, इतना इंसानी पढ़ा लिखा, और इसने अपनी जिंदगी ऐसी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर रनिंग आफ्टर द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दे आर डिप्रेस्ड। बट हम अपने लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे पास आशा है, वी हैव होप इन गॉड। लेकिन मैं और आप अगर अपना जीवन का दृष्टिकोण जीवन के जल के तरफ कर लेते हैं, तो मैं और आप एक संतुष्ट जीवन जीते हैं, अनंत जीवन की ओर चलते हैं, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से खुश होता है। आर एटीट्यूड टुवर्ड्स आर लाइफ शोज आर कमिटमेंट टू गॉड। मेरा जिंदगी के प्रति जैसा व्यवहार है वो दिखाता है कि मेरा परमेश्वर के प्रति रिश्ता कहता है। डू आर पोजेशंस हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन अस, or are we heading in the direction of living water as we come to the Lord's table? See, it is not about money, it is not about possession, it is about everything that we have in life. It is from God. सब परमेश्वर की ओर से। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं। धन्यवाद पिता, आप हमें सिखाते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपका है। जीवन में जो एक एक कण मेरे पास है प्रभु जी, वो सब आपका है, और हम आपको महिमा देते हैं। आप ही ने ये बल दिया है, शक्ति दिया है कि हम इन चीज़ों को कमाने पाएँ अपनी लाइफ में। आपने ये बुद्धि दी है, आपने समझ दी है, हम सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। होने दे जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारी मदद करें, सहायता करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall we all stand and affirm our faith reciting the Nicene Creed found in Book of Worship, page 107, 107 page में. Shall we all affirm our faith by saying together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, the eternal God, the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten of Him, one being with the Father, who will all things from Him, for us and for our salvation, He came down from heaven, by the power of the Holy Spirit, He was born of the Virgin Mary, became man, and for our sake was crucified upon His side. He suffered, died, and was buried. On the third day He rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We will work for the resurrection of the dead and the life of the world of God. Amen. Please be seated for a time of prayer. सेंट जूड आएगा, उसको हटा देना, ठीक है। प्रे फॉर सेंट जूड का ही लिखा हुआ, प्रे फॉर सेकंड कैथीड्रल, ये हटा दो। Let us intercede with God. Let us bow our heads in prayer.
In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र हैं, दलित हैं, बीमार हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं और मनों में याद करते हैं उन तमाम लोगों को जो हमारी कलीसिया में हैं, परमेश्वर उन्हें छुए और चंगाई दें। और जो लोग मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु। For all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor and Chief Minister of this state, and for all who have power over other people, Lord, in your mercy, for the unity of all Christian people and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, we pray for the unity of the whole Church Universal, especially for the Church of North India and its Synod and the Diocese of Delhi, especially for Vijay, our moderator, Ruben, the moderator of the Church of South India, Theodosius, Metropolitan of the Marthoma Church, and Right Reverend Paul Swaroop, our Bishop, Reverend Timothy, Reverend Ashish Jacob, Reverend Anurag, Reverend Ashish, all our presbyters and ministers serving in this diocese, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. For the confession of sins, let us turn to page 114, section number 17. Beloved, our Lord Jesus Christ said, "The Lord our God is the only Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let us all humbly pray together. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought, in word, in deed, in the evil we have done, and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins for the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us. Forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgives all who forgive one another and truly repent of the sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. Let's all stand and share the peace. एक दूसरे साथ मिलके हम शांति एक दूसरे से बांटें। हमने पश्चाताप किया है
और हमने पापों का अंगीकार किया है. We have asked for the confession and asked the Lord to forgive our sins. We are the body of Christ. In the one Spirit, we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always with you. We shall remain standing and sing hymn number 248, and during sing of this hymn, offertory will be taken. Stand up for Jesus. Let us present these offerings and with them ourselves for the service of the divine majesty. Then we turn to Book of Worship, page 117, section number 27. Let us all say the prayer together. All things come for you, of your own do we give you. Almighty God, creator of the world, we ask you to accept these offerings and gifts of bread and wine for the glory of your name and the good of your people, through Jesus Christ our Lord.
Amen. The Lord is here. His Spirit is with us. Lift up your hearts. We lift them unto the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give him thanks and praise. It's not only right, it is our duty and our joy, Holy Father, Heavenly King, Almighty and Eternal God, always and everywhere to offer you thanks and praise through Jesus Christ, your only Son, our Lord. For he is your true and living word. To him you have created all things from the beginning and formed us in your own image. To him you enlighten everyone who comes into the world, and from age to age have raised up prophets and wise men and women to point the way to you. Through him you have freed us from the slavery of sin, giving him to be born as man, to die upon the cross, and to rise again for us. Through him you give your holy and life-giving Spirit, and make us your children and the first fruits of your new creation. Let's say together, therefore we join our praises to the melodic song of saints and angels before your throne. We proclaim the glory of your name and say, Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Please be seated. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior Jesus Christ, and as we follow his example and obey his command, grant that by the power of his Spirit these gifts of bread and wine may be to us the body and blood of him who died for us and rose again. For in the same night that he was betrayed, he took bread, and after giving you thanks, he broke it and gave it to his disciples and said, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, and having given you thanks, he gave it to them and said, Drink this, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Therefore, Heavenly Father, in remembrance of him, we set apart this bread and this cup. We celebrate and proclaim his perfect sacrifice made once for all upon the cross, his resurrection from the dead and his ascension into heaven, and we look for his coming in glory. Christ has died. Let us say the prayer together. Accept through him our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in the presence of divine majesty, renew us by your Spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ, our Lord. With him and in him and through him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. We break this bread that we may share in the body of Christ. We are one body, for we all share in the one bread. The cup which you bless is a sharing of the blood of Christ. His life in us, and we live in him. As the Savior Christ has taught us, so we sing together the Lord's Prayer. Amen.
We do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather the crumbs under your table, but you are the same Lord, whose nature is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies and souls may be made clean by his most precious body and blood, and that we may evermore dwell in him and he in us. Amen. Draw near in faith, receive the body of the Lord Jesus Christ, which he gave for his blood, which he shed for you. Remember that he died for you, and feed on him in your hearts by faith and with thanksgiving.
Jesus says, no man can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Having by faith received this holy sacrament, let us give thanks to the Lord. Let's say together, Almighty God, we thank you for feeding us with the body and the blood of your Son, Jesus Christ. To him we offer you ourselves to be a living sacrifice. Send us out in the power of your Spirit to live and work to your praise and glory. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessed God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us now and forever. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Let us sing our closing hymn, number 61. Let us with a gladsome mind